हेलो एवरीवन। आई होप ਤੁਸੀਂ ਟੈਸਟ ਦੇ ਲਿਓ ਨਾ। ਆਰਗੈਨਿਕ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਟੈਸਟ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਟੈਸਟ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਫੀ ਵਧੀਆ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈंने ਦੋ ਚੈਪਟਰਸ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਇੱਕ ਸੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ IUPAC ਨੋਮਨਕਲੇਚਰ ਤੇ ਦੂਜਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ GOC ਜਨਰਲ ਆਰਗੈਨਿਕ ਕੈਮਿਸਟਰੀ। ਮਤਲਬ ਜਿਸ 'ਚ ਆਪਾਂ ਐਸਿਡਿਕ ਸਟਰੈਂਥ, ਬੇਸਿਕ ਸਟਰੈਂਥ, ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਆਫ ਕਾਰਬੋਕਟਾਇਨ, ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਆਫ ਕਾਰਬੋਨਾਈਨ ਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਕਈ ਸਾਰੇ ਐਰੋਮੈਟਿਸਿਟੀ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ PYQ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਲੈਕਚਰਰ ਕੈਡਰ ਤੇ ਮਾਸਟਰ ਕੈਡਰ ਦੇ मैंने ਸਾਰੇ ਇਸ ਟੈਸਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਨਕਲੂਡ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ YouTube ਤੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੋ ਟੈਸਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਇਸ ਨੰਬਰ ਤੇ। ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਸ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਲੋਐਸਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਹੈਗੀ ਸਾਡੀ, ਠੀਕ ਹੈ, 600 ਰੁਪੀਸ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਠੀਕ ਹੈ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦੀ। ਚਲਿए ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵਿਦ ਦ ਫਰਸਟ ਕੁਐਸਚਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿਹੜਾ ਕਰੈਕਟ ਆਂਸਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੱਸੂਗਾ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਲੌਜਿਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ, ਅਮੰਗ ਦ ਫੋਲੋਇੰਗ ਕੰਪਾਊਂਡਸ द मोस्ट बेसिक कंपाउंड इज। ਹੁਣ ਦੇਖੋ बेसिक स्ट्रेंथ किस ਤੇ डिपेंड करती है। बेसिक स्ट्रेंथ ਦਾ ਕੀ मतलब ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ टेंडेंसी टू डोनेट लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, टेंडेंसी टू डोनेट लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ਹੁਣ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਤੇ ਕਿਨੇ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲੋਨ ਪੇਅਰ ਹੈਗਾ, ਉਰੇ ਵੀ ਲੋਨ ਪੇਅਰ ਹੈਗਾ, ਉਰੇ ਵੀ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਤੇ ਲੋਨ ਪੇਅਰ ਹੈ। ਸਭ ਕੇਸਿਸ ਚ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਰੇ ਆਕਸੀਜਨ ਤੇ ਲੋਨ ਪੇਅਰ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆਗਾ ਮੋਸਟ ਬੇਸਿਕ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਈਜ਼ੀਲੀ ਲੂਜ਼ ਕਰ ਦੂਗਾ ਲੋਨ ਪੇਅਰ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵਾਲਾ ਲੋਨ ਪੇਅਰ ਹੈਗਾ ਉਰੇ ਤੇ ਇਹ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਰੈਜ਼ੋਨੈਂਸ ਦਾ ਪਾਰਟ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਲੋਨ ਪੇਅਰ ਤਾਂ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਲਈ, ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਤੇ ਬੇਸਿਕ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਵਾਲਾ ਫ੍ਰੀ ਲੋਨ ਪੇਅਰ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਫ੍ਰੀ ਲੋਨ ਪੇਅਰ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਰੈਜ਼ੋਨੈਂਸ ਦਾ ਪਾਰਟ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ, ਬਟ ਇਹ ਇਸ ਦੀ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈਗੀ, sp2 ਹੈਗੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦਾ S ਕਰੈਕਟਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਲੋਨ ਪੇਅਰ ਨੂੰ ਡੋਨੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਬਚੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ C ਤੇ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ D। ਠੀਕ ਹੈ, ਨਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸ ਕੋਈ ਰੈਜ਼ੋਨੈਂਸ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਫ੍ਰੀ ਲੋਨ ਪੇਅਰਸ ਨੇ। ਤੇ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਤੇ ਵੀ ਫ੍ਰੀ ਲੋਨ ਪੇਅਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈ, ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਫ੍ਰੀ ਲੋਨ ਪੇਅਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈ। ਹੁਣ ਈਜ਼ੀਲੀ ਕੌਣ ਡੋਨੇਟ ਕਰ ਦੇਗਾ ਆਪਣਾ ਲੋਨ ਪੇਅਰ, ਜਿਹੜਾ ਘੱਟ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨੈਗੇਟਿਵ ਹੋਏਗਾ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਦਾ ਕੀ ਆਰਡਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨੈਗੇਟਿਵ ਹੁੰਦਾ ਫਲੋਰੀਨ, ਫਿਰ ਆਕਸੀਜਨ, ਫਿਰ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ। ਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਉੱਪਰ ਹੋਲਡ ਕਰਨ ਦੀ ਟੈਂਡੈਂਸੀ। मतलब ऑक्सीजन ਤਾਂ ਆਪਦੇ ਉੱਪਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਰੱਖਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬਟ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ। ਮਤਲਬ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰੀਏ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਮਤਲਬ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਈਜ਼ੀਲੀ ਡੋਨੇਟ ਕਰ ਦੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਲੈਸ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨੈਗੇਟਿਵ ਹੈ ਐਜ਼ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਆਕਸੀਜਨ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਕਰੈਕਟ ਆਂਸਰ ਕੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ D। ਜਿਹੜਾ D ਵਾਲਾ ਕੰਪਾਊਂਡ ਆਪਣਾ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਮੋਸਟ ਬੇਸਿਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਲੋਨ ਪੇਅਰ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਈਜ਼ੀਲੀ ਡੋਨੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਈ ਥਿੰਕ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਸੈਕੰਡ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸੈਕੰਡ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੁੱਛਿਆ ਨੰਬਰ ਆਫ ਸਿਗਮਾ ਐਂਡ ਪਾਈ ਬੌਂਡ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜਿੰਨੇ ਵੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਲੋਨ ਪੇਅਰ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਿੰਗਲ ਬੌਂਡਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇਗੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਿਗਮਾ ਬੌਂਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਡਬਲ ਬੌਂਡ ਹੈਗਾ, ਡਬਲ ਬੌਂਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਸਿਗਮਾ ਬੌਂਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਲੱਸ ਇੱਕ ਪਾਈ ਬੌਂਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਟ੍ਰਿਪਲ ਬੌਂਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਸਿਗਮਾ ਐਂਡ 2 ਪਾਈ ਬੌਂਡਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੇ ਟੋਟਲ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਿਗਮਾ ਬੌਂਡ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰੀਏ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ਠੀਕ ਹੈ, 9 ਦਾ ਕੀ ਆ ਗਿਆ, ਸਿਗਮਾ ਬੌਂਡਸ ਆ ਗਏ, ਮਤਲਬ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ E ਬਣ ਗਿਆ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ। ਬਟ ਆਪਾਂ ਬਾਕੀ ਵੀ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪਾਈ ਬੌਂਡ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਦਾ। ਇੱਕ ਟ੍ਰਿਪਲ ਬੌਂਡ ਦੇ ਅੰਦਰ 2 ਪਾਈ ਬੌਂਡ, ਮਤਲਬ 2 ਪਾਈ ਬੌਂਡਸ ਤਾਂ ਉਰੋਂ ਆ ਗਏ, 2 ਪਾਈ ਬੌਂਡਸ ਉਰੋਂ ਆ ਗਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਡਬਲ ਬੌਂਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਪਾਈ ਬੌਂਡ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਉਰੋਂ ਆ ਗਿਆ, ਉਰੋਂ ਵੀ 2 ਆ ਗਏ, ਉਰੋਂ ਵੀ 2 ਆ ਗਏ। मतलब टोटल पाई बॉन्ड्स कितने हो गए, 9 हो गए। सिग्मा बॉन्ड्स भी कितने हो गए, 9 हो गए। लोन पेयर हर एक नाइट्रोजन की एक लोन पेयर है, तो टोटल 4 नाइट्रोजन ने अपने को, तो लोन पेयर कितने हो जाएंगे, 4। तो आंसर की बन जाएगा 9,9,4 विच इज ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, इजी क्वेश्चन सीगा, सब नूं आउंदा होएगा ये कॉन्सैप्ट। ठीक है, नेक्स्ट, ठीक है, एसिडिक स्ट्रेंथ, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, एसिडिक स्ट्रेंथ एंड बेसिक स्ट्रेंथ का कंपैरिजन। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਦੋ ਤਾਂ ਅਲਕੋਹਲਸ ਦਿੱਤੇ ਨੇਗੇ, OH ਵਾਲੇ, ਤੇ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਾਰਬੋਕਸਿਲਿਕ ਐਸਿਡ ਦਿੱਤਾ, ਇੱਕ ਸਲਫੋਨਿਕ ਐਸਿਡ ਦਿੱਤਾ, ਮਤਲਬ SO3H ਵਾਲਾ। ਹੁਣ ਐਸਿਡਿਕ ਸਟਰੈਂਥ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਸਿਕ ਸਟਰੈਂਥ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਸੀਗਾ, ਟੈਂਡੈਂਸੀ ਟੂ ਡੋਨੇਟ ਲੋਨ ਪੇਅਰ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ। ਐਸਿਡਿਕ ਸਟਰੈਂਥ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਐਸਿਡਿਕ ਸਟਰੈਂਥ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਟੈਂਡੈਂਸੀ ਟੂ ਗਿਵ H ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਇਨ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਪੀਸ਼ੀਜ਼ H ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਇਨ ਦੇ ਦੂਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਤੇ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲੇ ਕੇਸ ਕੀ ਆਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਰੇ O ਨੈਗੇਟਿਵ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਉਰੇ ਕੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, NO3। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੈਕੰਡ ਕੇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ COO ਨੈਗੇਟਿਵ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੀਸਰੇ ਕੇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ SO3SO
3 ਨੈਗੇਟਿਵ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ठीक है, चौथे केस के अंदर की बन जाएगा अपने को O नेगेटिव बन जाएगा। मतलब जिन्ना ज्यादा स्टेबल अनायन बनेगा, ठीक है, NO2 होएगा, सॉरी उरे, ठीक है, जिन्ना स्टेबल अनायन होएगा उन्नी की होगी एसिडिक स्ट्रेंथ, मतलब उन्ना इजीली की करके H पॉजिटिव डोनेट कर देगा। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟੇਬਲ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ? ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟੇਬਲ ਹੈ SO3- ਵਾਲਾ। ਕਿਉਂ? ਜਿਸ ਦਾ ਆਪਾਂ ਸਟਰਕਚਰ ਡਰਾ ਕਰੀਏ S ਡਬਲ ਬੌਂਡ O ਡਬਲ ਬੌਂਡ O ਨੈਗੇਟਿਵ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਟਰਕਚਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਚ ਕੀ ਕਰਨਗੇ, ਇਕੁਅਲ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟਿੰਗ ਰੈਜ਼ੋਨੇਟਿੰਗ ਸਟਰਕਚਰਸ ਬਣਨਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੀ ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਕਾਫੀ ਹਾਈ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। सॉरी, और डबल बॉन्ड आएगा, ठीक है। इस केस की हो जाएगा रेजोनेंस हो जाएगा 9 बनने तो बाद, इस केस भी हो जाएगा, बट इस केस की होएगा, ठीक है, एस ते ओदे अंदर बेटर बॉन्डिंग होएगी, जिस करके इस केस इजीली रेजोनेंस होएगा, इस केस घट होएगा। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਚ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰੀਏ, ਹੁਣ NO2 ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, NO2 ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮਾਈਨਸ M ਇਫੈਕਟ ਸ਼ੋ ਕਰਦਾ। ਮਾਈਨਸ M ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਵਿਡਰੋਇੰਗ ਇਫੈਕਟ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਵਿਡਰੋਇੰਗ ਇਫੈਕਟ। ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਵਿਡਰੋਇੰਗ ਗਰੁੱਪ ਇਫੈਕਟ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਉਰੇ O ਨੈਗੇਟਿਵ ਬਣੇਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਡੈਂਸਿਟੀ ਆਪਦੇ ਵੱਲ ਅਟਰੈਕਟ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ O ਨੈਗੇਟਿਵ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਸਟੇਬਲ ਹੋਏਗਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ O ਨੈਗੇਟਿਵ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਉਸ ਕੋਲ ਚਾਰਜ ਆ ਗਿਆ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ ਨੂੰ ਘਟਾ ਦੇਗਾ, ਉਹ ਕੀ ਕਰੇਗਾ, ਸਟੇਬਲਾਈਜ਼ ਕਰੇਗਾ ਉਸਨੂੰ। ਹੁਣ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ ਨੂੰ ਘਟਾਏਗਾ ਕੌਣ, ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਵਿਡਰੋਇੰਗ ਗਰੁੱਪ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਸਪੀਸ਼ੀਜ਼ ਆਪਦੇ ਉੱਪਰ ਚਾਰਜ ਰੱਖਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚਾਰਜ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਉਸ ਚਾਰਜ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਮਿਨੀਮਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਪੋਜ਼ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਾਰਬੋਕਟਾਇਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਾਰਬਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਕਾਰਬੋਕਟਾਇਨ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਕਾਰਬਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ, ਉਸਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਕਾਰਬਨ ਆਇਨ। ਹੁਣ ਕਾਰਬੋਕਟਾਇਨ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਉਸ ਤੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਹੈ। ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਸ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਡੈਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਕੀ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਡੈਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਹੈ। ਬਟ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਾਰਬ ਅਨਾਇਨ ਦੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਰਿਚ ਹੈ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਰਿਚ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਾਰਬਨ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਗਰੁੱਪਸ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਡੈਂਸਿਟੀ ਨੂੰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਨਗੇ, ਇਸ ਦੀ ਕਾਰਬੋਕਟਾਇਨ ਦੀ, ਉਹ ਕੀ ਕਰਨਗੇ, ਸਟੇਬਲ ਕਰਨਗੇ ਕਾਰਬੋਕਟਾਇਨ ਨੂੰ। ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਾਰਬਨ ਆਇਨ ਦੇ ਕੇਸ ਚ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਗੇ, ਉਹ ਕੀ ਕਰਨਗੇ, ਕਾਰਬਨ ਆਇਨ ਨੂੰ ਸਟੇਬਲ ਕਰਨਗੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮਿਥਾਈਲ ਗਰੁੱਪਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮਿਥਾਈਲ, ਇਥਾਈਲ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਪਾਈਲ, ਸਾਰੇ ਗਰੁੱਪਸ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਡੋਨੇਟਿੰਗ ਗਰੁੱਪਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਡੋਨੇਟਿੰਗ ਗਰੁੱਪਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇਗੇ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਕਾਰਬੋਕਟਾਇਨ ਹੈਗਾ, ਸਪੋਜ਼ C ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ, ਪਹਿਲਾਂ मैंने इस केस एक CH3 लगाया ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੋ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਲਗਾਤੇ। ਫਿਰ मैंने ਕੀ ਕੀਤਾ, ਦੋ CH3 ग्रुप लगाए ਤੇ ਇੱਕ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਲਗਾਇਆ। तीसरे केस मैंने तीनों ही लगाते, CH3 ग्रुप लगा ਤੇ ਕਾਰਬੋਕਟਾਇਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜੇ ਇਹ CH3 ग्रुप ਨੇ ਮਿਥਾਈਲ, ਇਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਡੋਨੇਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਉਹਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨਗੇ, ਉਰੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘੱਟ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਨੂੰ, ਮਤਲਬ ਕੀ ਨੇਗੇ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਡੋਨੇਟਿੰਗ ਗਰੁੱਪਸ ਨੇ, ਤਾਂ ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਵਾਲਾ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਮੋਸਟ ਸਟੇਬਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਨਕਲੂਜਨ ਕੀ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹਾਂਗੇ, ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਆਫ ਕਾਰਬੋਕਟਾਇਨ, stability of carbocatine is directly proportional to electron donating groups and inversely proportional to electron withdrawing group। ਹੁਣ ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸੇਮ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਵਾਂ, ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ CH3 CH2 CH2 ਨੈਗੇਟਿਵ, ठीक है, उरे आप सपोज करो CH2F लगाता, ठीक है, एक केस च मैंने की लगाता CH2Br, CH2 नेगेटिव, ठीक है। इन्हां दोहां चों किहड़ा कार्बन आयन मतलब जो कार्बन ते नेगेटिव चार्ज है, किहड़ा ज़्यादा कार्बन आयन स्टेबल हैगा, तो आप कंपेयर करिए, आपां नूं पता फ्लोरीन की हैगा, इलैक्ट्रॉन विडोइंग ग्रुप है, मतलब इलैक्ट्रॉन डेंसिटी नूं की करेगा, आपदे वल खिंचेगा। तो किहड़ा ज़्यादा खिंचेगा, फ्लोरीन ज़्यादा खिंचेगा या ब्रोमीन ज़्यादा खिंचेगा, क्योंकि फ्लोरीन ज़्यादा इलैक्ट्रोनैगेटिव है, तो नैगेटिव चार्ज आपदे वाले खिंचेगा। जो भी नैगेटिव चार्ज डिस्पर्स होएगा, मतलब नैगेटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड घटेगा, स्टेबिलिटी हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो इस केस किहड़ा ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा, ठीक है, फर्स्ट वाला ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। मतलब आप कह सकते हैं स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन is directly proportional to electron withdrawing group and inversely related to electron releasing group। आई होप ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵਾਲਾ ਕਨਸੈਪਟ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਕਨਸੈਪਟ ਹੋਰ ਸਿੱਖੋ ਉਰੇ, ਦੇਖੋ ਉਰੇ ਦੇਖੋ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਐਸਿਡਿਕ ਸਟਰੈਂਥ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ,
ਐਸਿਡਿਕ ਸਟਰੈਂਥ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਟੈਂਡੈਂਸੀ ਟੂ ਗਿਵ H ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ। ਜਦੋਂ H ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਕੋਈ ਸਬਸਟੈਂਸ, ਲਾਈਕ ਆਪਾਂ ਅਲਕੋਹਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਠੀਕ ਹੈ, H ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਦੇਤਾ, ਤਾਂ H ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਬਣੇਗਾ, ਕਾਰਬਨ ਆਇਨ ਬਣੇਗਾ, ਮਤਲਬ ਅਨਾਇਨ ਬਣੇਗਾ। ਹੁਣ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਨਾਇਨ ਸਟੇਬਲ ਹੋਏਗਾ ਉਨੀ ਕੀ ਹੋਏਗੀ, ਐਸਿਡਿਕ ਸਟਰੈਂਥ ਹੋਏਗੀ। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਫੈਕਟਰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਐਸਿਡਿਕ ਸਟਰੈਂਥ ਨੂੰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਨਗੇ, ਉਹੀ ਫੈਕਟਰ ਕੀ ਹੋਣਗੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਆਫ ਕਾਰਬਨ ਆਇਨ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਗੇ, ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਨਸੈਪਟ ਰਿਲੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵਾਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਕਰੈਕਟ ਆਂਸਰ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਸਿਡਿਕ ਬੀ, ਫਿਰ ਸੌਰੀ ਸੀ, ਫਿਰ ਬੀ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ और NO2 ग्रुप लगेगा तो इलैक्ट्रॉन डेंसिटी आपदे वाल खिंचेगा, इलैक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है -m के थ्रू, तो उस तो बाद A, उस तो बाद D, सॉरी इसने इसी फॉर्म दिता, कोई दिक्कत नहीं, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा इसका, RQ, ठीक है, PS बिल्कुल सही। ठीक है, नेक्स्ट स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, उरे कार्बोकेटाइन दिता है, उरे भी कार्बोकेटाइन दिता है, उरे भी कार्बोकेटाइन दिता है। हुण देखो अपने दो तरह के कंपाउंड्स पढ़ने ने, एक होंदे ने अपने कोल एरोमैटिक कंपाउंड्स, एक होंदे ने नॉन एरोमैटिक कंपाउंड्स, एक होंदे ने एंटी एरोमैटिक कंपाउंड्स। ठीक है, इसनू किवें डिसाइड करांगे किहड़ा कंपाउंड एरोमैटिक है, किहड़ा एंटी एरोमैटिक है, ਉਹਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ रूल पता होना चाहिए, जिसनू ਆਪਾਂ बोलते हैं हकल्स रूल। देखो हकल्स के रूल के अकॉर्डिंग की हुंदा हैगा, ठीक है, तीन तरह के कंपाउंड होंदे ने, एक होंदे ने एरोमैटिक कंपाउंड्स, एक होंदे ने एंटी एरोमैटिक कंपाउंड्स, ते एक होंदे ने नॉन एरोमैटिक कंपाउंड्स। ठीक है, हक्कल ने कहा सीगा ਜਿਹੜੇ एरोमैटिक कंपाउंड्स ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ठीक है, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ एक्स्ट्रा स्टेबलाइज्ड ਹੁੰਦੇ ਨੇ, मतलब ਕਿ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਹਾਈਲੀ ਸਟੇਬਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ एंटी एरोमैटिक कंपाउंड्स ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਹਾਈਲੀ डिस्टेबल ਹੁੰਦੇ ਨੇ, मतलब अनस्टेबल ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ नॉन एरोमैटिक कंपाउंड्स ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ एरोमैटिक ਨੂੰ ਘੱਟ ਤੇ एंटी एरोमैटिक ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। मतलब ਆਪਾਂ स्टेबिलिटी ਦਾ ਆਰਡਰ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਕੀ ਬਣੇਗਾ, ठीक है, इसमें मैं A नाल रिप्रेजेंट करदा, एंटी एरोमैटिक नू AA नाल ते नॉन एरोमैटिक नू NA नाल। तो स्टेबिलिटी सब तो ज़्यादा एरोमैटिक, फिर नॉन एरोमैटिक, फिर एंटी एरोमैटिक। ठीक है, एंटी एरोमैटिक की हो गई लीस्ट स्टेबल होगी। हुण आपां डिसाइड किवें करांगे कोई कंपाउंड एरोमैटिक है या नहीं, उस लिए आपां लिखते हकल रूल। हकल रूल के अकॉर्डिंग की सीगा, किसी भी कंपाउंड के एरोमैटिक होने लई पहली गल वो प्लेनर होना चाहिए, मतलब हर एक कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन sp2 होनी चाहिए है। ठीक है, उस तो बाद जे तुहानूं किते भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन दिखगी तो नॉन प्लेनर हो जाएगा, प्लेनर होना चाहिए। उस तो बाद कॉन्जुगेशन होना चाहिए, कंप्लीट कॉन्जुगेशन, मतलब रेजोनेंस होना चाहिए है। उस तो बाद 4n पाई प्लस 2 इलैक्ट्रॉन फॉलो करना चाहिए, मतलब जे आप n की वैल्यू पुट करिए 0 1 2 3 तो की बन जाएंगे, जो उसको 2 पाई इलैक्ट्रॉन्स ने, ठीक है, 6 पाई इलैक्ट्रॉन्स ने, 10 पाई इलैक्ट्रॉन्स ने, 14 पाई इलैक्ट्रॉन्स ने, तो वो की बन जाएगा एरोमैटिक कंपाउंड बन जाएगा। क्लियर सब नूं? जे किसी कंपाउंड ने एंटी एरोमैटिक होना है, ठीक है, सेम कंडीशन ने, बस वो किस फॉलो करेगा, 4n पाई रूल फॉलो करेगा, मतलब 4 पाई इलैक्ट्रॉन होगी, ठीक है, 8 पाई इलैक्ट्रॉन होगी, 10 पाई सॉरी 12 पाई इलैक्ट्रॉन होगी। ठीक है, वो सारे कंपाउंड की होंगे ने एंटी एरोमैटिक। नॉन एरोमैटिक चैक करने का की तरीका है, जे तुसीं नॉन एरोमैटिक देखना है तो किसी भी एक कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन या तो sp3 हो जाएगी, या तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन चेक कर लो जी, किसी कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, या चेक कर लो स्ट्रक्चर प्लेनर है या नॉन प्लेनर है, स्ट्रक्चर प्लेनर है या नॉन प्लेनर। ठीक है, ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਕਨਸੈਪਟ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਈਕਲਿਕ ਕੰਪਾਊਂਡਸ ਲਈ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮਤਲਬ ਰਿੰਗ ਟਾਈਪ ਕੰਪਾਊਂਡਸ ਲਈ ਵੈਲਿਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੀਏ ਜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ, ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਬੈਂਜ਼ੀਨ ਹੈ, ठीक है, बेंजीन के अंदर तीन पाई बॉन्ड्स ने, तिन्ने की ने आपस में रेजोनेंस ने, मतलब टोटल कितने पाई इलैक्ट्रॉन्स ने, 6 पाई इलैक्ट्रॉन्स ने, तो बेंजीन की हो गया एरोमैटिक हो गया। ठीक है, हुण देखिए आप ए वाले कंपाउंड की गल करिए, ठीक है, ए वाला की हो गया, हुण देखो उरे जिहड़ा ए वाला कार्बन हैगा इस नाल 2 हाइड्रोजन लगे होंगे, क्योंकि अपने कार्बन के 4 बॉन्ड्स बनाने होंदे ने, तो इस वाले कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन की होगी sp3 मतलब टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल मतलब नॉन प्लेनर, टेट्राहेड्रल का की मतलब हो गया नॉन प्लेनर, तो इस केस एक ही बन जाएगा नॉन एरोमैटिक बन जाएगा, इस केस एक ही बन जाएगा नॉन एरोमैटिक बन जाएगा। जब आप इस कंपाउंड की गल करिए पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज कदे भी इलैक्ट्रॉन काउंट च नहीं होता होंदा, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज कदे भी इलैक्ट्रॉन काउंट च नहीं होना चाहिए, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज मतलब इलैक्ट्रॉन है ही नहीं, तो इसमें इट मीनस बट ये रेजोनेंस च हैगे ने,
ਤਾਂ ਇੱਕ ਮੀਨਸ ਕਿੰਨੇ ਪਾਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਸਿਸਟਮ ਹੈ 2 ਪਾਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਪਾਈ ਬੌਂਡ ਕੀ ਹੈ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਐਰੋਮੈਟਿਕ ਕੰਪਾਊਂਡ ਹੋ ਗਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਇਹ ਵਾਲੇ ਕੰਪਾਊਂਡ ਦੀ ਹੁਣ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ ਤਾਂ ਰੈਜ਼ੋਨੈਂਸ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰਦਾ ਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਕਾਊਂਟ ਵੀ ਇਸਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਪੂਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੋਨ ਪੇਅਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਸਿਸਟਮ ਹੋ ਗਿਆ 4 ਪਾਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਸਿਸਟਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਐਂਟੀ ਐਰੋਮੈਟਿਕ ਸਿਸਟਮ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਐਂਟੀ ਐਰੋਮੈਟਿਕ ਸਿਸਟਮ ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਣਗੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਰਹੂੰਗਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਦੇ ਥਰੂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ क्वेश्चन ਕੀਤਾ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन पहले केस च ਜਿਹੜਾ कार्बोकेटाइन ਬਣੇਗਾ ठीक है ਇਹ ਕੀ नॉन प्लेनर कंपाउंड है नॉन प्लेनर है पहला कंपाउंड ठीक है सेकंड ਕੀ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ हाँ नॉन प्लेनर है तो नॉन एरोमेटिक हो गया पहला कंपाउंड दूसरा ਕੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ एरोमेटिक कंपाउंड है ਹੁਣ एरोमेटिक कंपाउंड ਚ ਜਿਹੜਾ कार्बोकेटाइन ਬਣੇਗਾ ਉਹ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਹਾਈਲੀ ਸਟੇਬਲ ਹੋਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਓਵਰਆਲ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ एरोमेटिक हो गया ਉਰੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰਿੰਗ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪਾਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ डिस्टेबलाइज्ड हो गया ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਰੈਕਟ ਆਰਡਰ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ 2 ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ 2 ਤਾਂ ਐਰੋਮੈਟਿਕ ਬਣ ਗਿਆ ਬਟ ਉਰੇ ਵੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਤੇ ਡਬਲ ਬੌਂਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੈਜ਼ੋਨੈਂਸ ਹੈਗਾ ਬਟ ਘੱਟ ਰੈਜ਼ੋਨੈਂਸ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਸਟ ਆ ਜਾਏਗਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ ਥਰਡ ਤਾਂ ਹਾਈਲੀ डिस्टेबल ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਈ ਬੌਂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜਿੱਥੇ ਡਬਲ ਬੌਂਡ ਆ ਜੇ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਆ ਜੇ ਉਹ ਹਾਈਲੀ ਅਨਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ठीक है नेक्स्ट कंपाउंड चलो आप डिस्कस कर ही रहे थे किहड़े एरोमेटिक कंपाउंड्स नेगे ठीक है वही क्वेश्चन आ गया हाँ चलिए ये वाला क्वेश्चन देखिए तो पहले कंपाउंड के अंदर ठीक है रेजोनेंस रहेगा कंप्लीट रेजोनेंस ठीक है ना ए उरे आ जाएगा ए उरे आ जाएगा रेजोनेंस रहेगा बट इलेक्ट्रॉन कितने 4 पाई इलेक्ट्रॉन मतलब एंटी एरोमेटिक ठीक है ए वाले कंपाउंड ए वाले कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन की होगी sp3 होगी तो इसमें आप की बोलेंगे नॉन प्लेनर मतलब नॉन एरोमेटिक ठीक है थर्ड केस के अंदर चेक करो जो अपने को रिंग टाइप सिस्टम आ जाए ना दो रिंग फ्यूज किया हुआ आपस के अंदर तो आप जो बाहरी इलैक्ट्रॉन्स ने वाले इलैक्ट्रॉन पैरीफेरी के मतलब ए वाले इलैक्ट्रॉन्स को काउंट करते हैं ये सारे रेजोनेंस ने 1 2 3 4 5 5 आउट मतलब 10 पाई इलैक्ट्रॉन्स तो ये हो गया एरोमेटिक हो गया बिल्कुल सही गल है ठीक है उरे भी कैलकुलेट करिए 1 2 3 4 5 उरे भी 10 इलैक्ट्रॉन्स ने ठीक है ये भी एरोमेटिक होना चाहिए सी बट एरोमेटिक नहीं होंगे ठीक है क्यों नहीं होंगे एरोमेटिक इसका रीजन होंगे कि इसका जो एग्जैक्ट स्ट्रक्चर होंगे देखो उरे भी एक हाइड्रोजन प्रेजेंट होंगे उरे भी एक हाइड्रोजन प्रेजेंट होंगे ठीक है तो जो अपने को ये वाला कंपाउंड होंगे ये की होंगे टब शेप के अंदर कन्वर्ट हो जाता है ठीक है बिकॉज ये दो हाइड्रोजन अंदर की होंगी है रिपल्शन जिस करके इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का होंगे ठीक है बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन हाइड्रोजन रिपल्शन एक ही होंगे नॉन प्लेनर हो जाता है होना तो एरोमेटिक चाहिए सी बट ये हो की जाता है नॉन एरोमेटिक हो जाता है ठीक है टब शेप किहड़े मॉलिक्यूल होंगे ये अपने को साइक्लो ऑक्टाटेट्राइन होंगे कुछ इस तरह का कंपाउंड होंगे वो ठीक है इस केस की होंगे वैसे कितने इलैक्ट्रॉन है 8 पाई इलैक्ट्रॉन सिस्टम है तो होना की चाहिए सी एंटी एरोमेटिक होना चाहिए सीगा बट क्योंकि ठीक है ये नॉन प्लेनर हो जाता है मतलब इस शेप के अंदर आने टब शेप के अंदर तो इस करके ये वाला कंपाउंड की होंगे इस फॉर्म के अंदर कन्वर्ट होता है जिसमें आप बोल देंगे टब शेप ठीक है इसमें की बोलते टब शेप जो कि हुण इस केस की है नॉन एरोमेटिक कंपाउंड ठीक है एडिशनल इंफॉर्मेशन थोनों ठीक है मतलब एंटी एरोमेटिक होना चाहिए सी बट नॉन एरोमेटिक बन गया इसका मतलब की होगा स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी क्योंकि नॉन एरोमेटिक होंगे ज़्यादा स्टेबल होंगे एज कंपेयर टू एंटी एरोमेटिक जो इसका करैक्ट आंसर देखा जाए तो किहड़ा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन ठीक है कार्बोकेटाइन में एक बार शो कर देना एक और उरे कार्बोकेटाइन है एक और उरे कार्बोकेटाइन है एक उरे कार्बोकेटाइन है तो एक उरे कार्बोकेटाइन ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੇਸਿਸ 'ਚ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਇਫੈਕਟ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਾਰਬੋਕੇਟਾਈਨ ਦੀ ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਦੇਖਣੀ ਹੈ ਔਨ ਦਾ ਬੇਸਿਸ ਆਫ ਨੰਬਰ ਆਫ ਅਲਫਾ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਕਾਰਬੋਕੇਟਾਈਨ ਦੀ ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨਲ ਟੂ ਨੰਬਰ ਆਫ ਅਲਫਾ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਠੀਕ ਹੈ ਸੇਮ ਆਪਾਂ ਕਨਸੈਪਟ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਅਲਕੀਨਸ ਦੀ ਹੁਣ ਨੰਬਰ ਆਫ ਅਲਫਾ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰੀਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾ ਕੰਪਾਊਂਡ ਹੈ ਉਰੇ CH2 ਉਰੇ ਕੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਹੈ ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਕਾਰਬਨ ਦੇਖੋ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਕਾਰਬਨ ਨੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਵਾਲਾ ਕਾਰਬਨ एक ए वाला कार्बन हम दोहां से देखो किन्ने किन्ने हाइड्रोजन ने तीन बॉन्ड्स तो बना रखे ने तो एक हाइड्रोजन उरे प्रेजेंट है दो हाइड्रोजन उरे प्रेजेंट ने तो अल्फा हाइड्रोजन इस केस किन्ने आ गए तीन आ गए ठीक है बाकी केसेस तुसी कैलकुलेट करो तो इस केस किन्ने आ जाएंगे अल्फा हाइड्रोजन 4 आ जाएंगे ठीक है इस केस किन्ने आ जाएंगे अल्फा हाइड्रोजन 4 तो 2 6 आ जाएंगे इस केस अल्फा हाइड्रोजन किन्ने आ जाएंगे 1
ठीक है 2 3 4 ठीक है ना। इस केस किन्ने आ जाएंगे अल्फा हाइड्रोजन 4 आ जाएंगे। तो हाईएस्ट अल्फा हाइड्रोजन किस केस च आ रहे हैं सी केस च। मोस्ट स्टेबल किहड़ा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो मोस्ट स्टेबल किहड़ा हो जाएगा कार्बोकटायन ऑप्शन नंबर सी। ठीक है नैक्सट क्वेश्चन आईयूपीएसी नेमिंग तो हैगा ठीक है ये भी तुहानूं थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए। आईयूपीएसी नेमिंग का भी आइडिया होना चाहिए हैगा ते कॉमन नेमिंग का भी तुहानूं आइडिया होना चाहिए हैगा। हुण देखो ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨੰਬਰਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ। ਨੰਬਰਿੰਗ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂਗੇ ਲੋਐਸਟ ਸਮ ਰੂਲ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੇ ਸਬਸਕ੍ਰਿਪਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਨੀਮਮ ਨੰਬਰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਨੰਬਰਿੰਗ ਕਰਾਂਗੇ ਉਰੋਂ 1 2 3 4 5 6। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 1 ਤੇ ਕੀ ਹੈ ਕਲੋਰੋ 2 ਤੇ 3 ਤੇ ਕੀ ਹੈ ਬ੍ਰੋਮੋ ठीक है। अल्फाबेटिकली पहला कौन होंदा है बी होंदा है आर सी होंदा है ब्रोमो होंदा मतलब बी होंदा है तो आप पहले ब्रोमो लिखांगे मतलब 3 ब्रोमो ठीक है 1 ते 1,1 डाई क्लोरो ठीक है क्योंकि ये रिंग है कि साइक्लोहेक्सेन ठीक है 6 मेंबर रिंग लिए ਆਪਾਂ ਕੀ यूज ਕਰਾਂਗੇ साइक्लोहेक्सेन ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है नैक्सट क्वेश्चन ठीक है एसिडिक स्ट्रेंथ का ठीक है मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ एसिडिक स्ट्रेंथ जिन्ना ज्यादा अपने को ਜਿਹੜਾ नेगेटिव चार्ज बनेगा और सी डबल बॉन्ड ओ नेगेटिव 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 मतलब आफ्टर द लूजिंग ऑफ H प्लस ਹੁਣ सी एन की ਹੁੰਦਾ अपने को माइनस आई एम इफेक्ट ਹੁੰਦਾ माइनस एम ਜਾਂ माइनस आर मतलब रेजोनेंस के थ्रू की कर देगा स्टेबलाइज करता है किसनों ठीक है कार्बन आयन ਨੂੰ। ਹੁਣ ਇਸ ਕੇਸ 'ਚ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ CN ਹੁੰਦਾਗਾ मतलब माइनस एम ਤੇ माइनस आर है ये ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन की वर्क करते हैं। ये कितने वर्क करते हैं ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे मतलब ऑर्थो से सब तो ज्यादा फिर पैरा थी। तो मोस्ट एसिडिक किहड़ा हो जाएगा फर्स्ट फिर क्या आएगा थर्ड फर्स्ट थर्ड ठीक है। हुण इस केस च CN दा ठीक है मैटा ते कोई वर्क नहीं करता जेडे भी अपने कोल ग्रुप्स होंदे ने ये मैटा ते वर्क नहीं करनगे जिस करके ठीक है तीजे नंबर ते की हो जाएगा अपने को सेकंड वाला फिर क्या आ जाएगा फोर्थ वाले तो कोई ग्रुप भी अटैच नहीं हैगा जेड़ा कि नेगेटिव चार्ज ਨੂੰ स्टेबलाइज कर सके। तो इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा 1 3 2 4 ठीक है डेट इज ऑप्शन नंबर ए। ठीक है एक बार तुम थ्योरी पढ़ लो ठीक है उस तो बाद ਤੁਹਾਡੀ कॉन्सेप्चुअली क्लैरिटी हो जाएगी इन्हां क्वेश्चन से ठीक है। इनकरेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी और कार्बोकटाइन लिखा है ये और पॉजिटिव है ठीक है तो उरे की नेगेटिव है बाकी सारे केसेस नेगेटिव है। ठीक है हुण आपां डिस्कस कर चुके हैं कार्बन आयन ते कार्बोकटाइन की स्टेबिलिटी का। तो पहले केस च ठीक है PH3C पॉजिटिव मतलब कुछ इस तरह की कंडीशन हैगी और C पॉजिटिव है ठीक PH का मतलब होंदा फिनाइल मतलब बेंजीन रिंग टाइप जो बेंजीन रिंग तो एक हाइड्रोजन रिमूव कर देना उसमें आप PH लिख देना मतलब फिनाइल ठीक है। बेंजीन की होंदी हैगी ये वाली बेंजीन होंदी हैगी C6H6 जे उसके अंदर आप एक हाइड्रोजन रिमूव कर दिए तो आप की बोल देंगे ठीक है वो की बन जाती है अपने को C6H5 जिसमें आप की बोल देना PH फिनाइल ठीक है फिनोल नहीं फिनाइल ठीक है फिनोल अलग होंगे फिनोल ये वाला होंगे ठीक है। इस केस च पूछा इनकरेक्ट ऑर्डर स्टेबिलिटी का ठीक है ये वाला ऑर्डर बिल्कुल सही है क्योंकि इस केस ज्यादा रेजोनेंस होगा तो ज्यादा स्टेबिलिटी होगी। इस वाले केस भी सेम है बिल्कुल क्योंकि कार्बन आयन तो ऑपोजिट ऑर्डर हो जाएगा ठीक है। ये वाला केस भी बिल्कुल सही है क्योंकि ये इसका ऑपोजिट है ठीक है। तो लास्ट ऑप्शन की बन गया इसका इनकरेक्ट बन गया ठीक है बिल्कुल ईजी क्वेश्चन सी आई होप तुम कर लिया ठीक है। नैक्सट क्वेश्चन देखो ठीक है उरे भी लोन पेयर 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 है ठीक है। बट लोन पेयर ਕਿਹੜਾ रेजोनेंस नहीं है कि पीएच का की मतलब ਹੁੰਦਾ मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆਗਾ ठीक है। इस नाल की ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆਗਾ ਤਿੰਨ पीएच ग्रुप लगे हुए हैं मतलब इस तरह तीन ग्रुप लगे हुए हैं सेम। तो इस केस का लोन पेयर की अगर रेजोनेंस का पार्ट है तो कदे डोनेट हो ही नहीं सकता इस भी रेजोनेंस का पार्ट है इस भी रेजोनेंस का पार्ट है इस रेजोनेंस का पार्ट नहीं है क्यों क्योंकि बेंजाइल अमीन है बेंजाइल अमीन मतलब ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਡਬਲ ਬੌਂਡ ਹੈਗਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲੋਨ ਪੇਅਰ ਹੈਗਾ ਇਸ ਰਿੰਗ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਰੈਜ਼ੋਨੈਂਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦਾ ਕਰੈਕਟ ਆਨਸਰ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਡੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਲੋਨ ਪੇਅਰ ਰੈਜ਼ੋਨੈਂਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਲੈਸ ਬੇਸਿਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਬਿਕੋਜ਼ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਰੈਜ਼ੋਨੈਂਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਲਈ ਈਜ਼ੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਉਂਦਾ ठीक है। नैक्सट क्वेश्चन ठीक है हुण तुहानूं प्रैफरेंस पता होनी चाहिए सी ये अपने को साइनाइड ग्रुप नाइट्राइल ग्रुप या अपने को एल्डिहाइड जे तुसीं एक बार सीरीज पढ़ी होनी ठीक है सीनियर मोस्ट फंक्शनल ग्रुप की ठीक है तो अपने NCERT की बुक च भी दी हुई तो देखा होगा कि CN नूं आपां पहला नंबर देना है जे आपां CN नूं पहला नंबर दईए 1 2 3 4 ठीक है। हुण अपने को 2 ते की आ गया मिथाइल आ गया
फोर्थ की आ गया ऑक्सो, ठीक है, जो आप इसमें सेकंड प्रेफरेंस देने एल्डिहाइड में, फॉर ऑक्सो ब्यूटेन नाइट्राइल, ठीक है ना। इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। थोड़ा टफ क्वेश्चन ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ, बट आई होप सब समझ आ गया हूँ देखो, ठीक है। और भी कार्बोकेटाइन है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोर स्टेबल, ठीक है। सारे की ने 1 डिग्री ने, सारे की ने ये भी 1 डिग्री है, ये भी 1 डिग्री है, ये भी 1 डिग्री है, ये भी 1 डिग्री है। 1 डिग्री का की मतलब हो गया ਜਿਹੜਾ कार्बोकेटाइन ਨਾਲ कार्बन जुड़ेगा, ठीक है, इसकी डिग्री मतलब ये वाला कार्बोकेटाइन से भी कार्बन ਨਾਲ अटैच है तो इसकी डिग्री 1 डिग्री, ठीक है। सिमिलरली जे आप देखिए ये वाला कार्बोकेटाइन है, ठीक है, जिस कार्बन से कार्बोकेटाइन है वो किन्ने कार्बन ਨਾਲ जुड़ा है, 21 ਨਾਲ 21 ਨਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ 2 डिग्री कार्बोकेटाइन हो जाएगा। तो इस केस च अल्फा हाइड्रोजन कितने नेगे 3 ने, इस केस च अल्फा हाइड्रोजन 2 ने, इस केस च अल्फा हाइड्रोजन 2 ने, इस केस च अल्फा हाइड्रोजन 2 ने। तो मोस्ट स्टेबल केड़ा हो गया जिसको मैक्सिमम अल्फा हाइड्रोजन होगी, ठीक है। अल्फा हाइड्रोजन ਨਾਲ क्यों स्टेबिलिटी बढ़ती है क्योंकि उन्नी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बढ़ जाते हैं, हाइपर कॉन्जुगेटिंग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की होंगे ने इंक्रीज हो जाते हैं। तो इसका करेक्ट बन जाएगा आंसर नंबर ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज 1 डिग्री ओनली 1 डिग्री हाइड्रोजन, ठीक है, प्राइमरी हाइड्रोजन है, ठीक है। आइसोब्यूटेन, हुण आइसो वर्ड कदों यूज करते हैं आपको पता होना चाहिए कॉमन नेमिंग के अंदर, ठीक है। आइसो वर्ड का मतलब होता है जो 2 मिथाइल, ठीक है। आइसो वर्ड कदों यूज करते हैं आप जो 2 मिथाइल इज प्रेजेंट एज ब्रांच, इज प्रेजेंट एज ब्रांच, मतलब जो 2 मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट होंगे उसमें आप बोल देंगे आइसो, ठीक है। जिस तरह अपने को आइसो ब्यूटेन है, ब्यूटेन का मतलब 4 कार्बन CH3 CH, ठीक है। 2 ते की आएगा मिथाइल आएगा CH2, ठीक है, CH3, ठीक है। 4 कार्बन ने 1 2 3 4, ठीक है, क्योंकि 2 नंबर पोजीशन ते मिथाइल आता है इसमें आप की बोलेंगे आइसोब्यूटेन, ठीक है। इस किन्ने तरह के हाइड्रोजन प्रेजेंट नेगे देखा जाए तो, ठीक है। ए वाला प्राइमरी हाइड्रोजन, ठीक है, ए वाला की है सेकेंडरी हाइड्रोजन, ठीक है। बट क्वेश्चन ने पूछा है ओनली 1 डिग्री, हम आइसोब्यूटेन ड्रॉ करिए आप, आइसोब्यूटेन का स्ट्रक्चर बन जाएगा CH3 CH डबल बॉन्डेड CH2, सॉरी उरे की आ जाएगा अपने को CH3 आ जाएगा, ठीक है ना। एक ही बन गया अपने को आइसोब्यूटीन बन गया। इस केस जो सारे हाइड्रोजन ने वो की ने 1 डिग्री हाइड्रोजन, ठीक है। सारे हाइड्रोजन की ने 1 डिग्री हाइड्रोजन था, इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। साइक्लोहेक्सेन की होंगे अपने को ए वाला कंपाउंड होंगे ते टोलिन की होंगे जो बेंजीन रिंग के ऊपर CH3 लगे होंगे इसमें आप बोलते टोल, ठीक है। आई होप तो क्लीयर हो गया होगा कि जो प्राइमरी हाइड्रोजन है वो किस केस प्रेजेंट है ओनली, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। नैक्सट है, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इलैक्ट्रोनेगेटिविटी पूछेगा। हुण तुसीं देखो एक हुंदा अपने कोल CH3 एक हुंदा CH2 डबल बॉन्डेड CH2, एक हुंदा CH ट्रिपल बॉन्डेड CH, ठीक है। पहले नूं आपां बोलदे अल्केन्स, सैकेंड नूं अल्कीन्स, थर्ड नूं अल्काइन्स, ठीक है। एक हो गया अपने कोल अल्केन, ये हो गए अल्कीन्स, ये हो गए अल्काइन्स। जे हुण आपां गल करिए, ठीक है, अल्कीन एंड अल्काइन्स दे अंदरों, ठीक है, एस करैक्टर कितना हैगा, ठीक है। ए वाले कार्बन की हाइब्रिडेशन sp3, इस दी sp2, ठीक है। देखो मैं तुहानूं सिंपल रूल दस देना, जो भी 4 सिंगल बॉन्ड्स होंगे उसकी हाइब्रिडेशन होंदी है sp3, जो अपने को डबल बॉन्ड नाल अटैच होंगे कार्बन उसकी हाइब्रिडेशन होंदी है sp2, ते जो ट्रिपल बॉन्ड नाल अटैच होंगे उसकी हाइब्रिडेशन होंदी है sp। हुण देखो जे आपां गल करिए sp3, ठीक है, sp2 ते sp, ठीक है, इन्हां दे अंदर कितना परसेंट s करैक्टर होएगा, ते परसेंट s करैक्टर की गल करिए आपां, ते परसेंट s करैक्टर का की मतलब होया, देखो हुण अपने कोल sp3 है मतलब 4 चीज़ां ने एक s 3 p, ते आपां तिन्नां चारां च की करना है इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो s के हिस्से कितना आएगा 25% s करैक्टर, ठीक है। sp2 के केस कितना आएगा 33%, 33.3%, sp के केस 2 हिस्से बनना बनना 50%। हुण s करैक्टर सब तो ज़्यादा किस केस च sp के केस च, ठीक है। जिन्ना ज़्यादा s करैक्टर इंक्रीज होंदा, जिन्ना ज़्यादा s करैक्टर इंक्रीज होंदा है उन्नी की इलैक्ट्रोनैगेटिविटी की इंक्रीज होंदी है, जिन्ना ज़्यादा s करैक्टर इंक्रीज होंदा है उन्नी की इलैक्ट्रोनैगेटिविटी इंक्रीज होंदी है, ठीक है। इस बेस पे तुहाडा एक प्रीवियस ईयर के अंदर क्वेश्चन आया है वो भी मैं करवाऊंगा तुहानूं। हुण देखो इस केस च पूछेगा विच ऑफ द फॉलोइंग हैज कार्बन हैज हाईएस्ट इलैक्ट्रोनैगेटिविटी, जिहड़ा कि होगा sp, ठीक है। और आपां नूं ट्रिपल बॉन्ड दिख रहेगा तो ये वाला कार्बन sp हो गया, तो ये वाला की होएगा मोस्ट इलैक्ट्रोनैगेटिव होएगा, तो इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अगला क्वेश्चन हैगा, ठीक है, अमंग द स्पीशीज मोस्ट स्टेबल, ठीक है। हुण नेगेटिव चार्ज स्पीशीज, नेगेटिव चार्ज को कौन स्टेबलाइज करेगा जिहड़ा उन्हां दे नेगेटिव चार्ज को घट कर देगा, मतलब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स, उरे ब्रोमीन भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, फ्लोरीन भी, बट उरे 2 फ्लोरीन, ते एक डीएनपी रूल हुंदा हैगा, ठीक है। आपां सब तो पहले देखना सब तो नेड़े किहड़ा हैगा, ठीक है, डिस्टेंस, डीएनपी रूल का मतलब डिस्टेंस
ਨੰਬਰ, ਫਿਰ ਦੇਖਣੀ ਆਪਣੇ ਪਾਵਰ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ CH3 CH, ठीक है, उरे Cl है, CO माइनस है, ठीक है, दूसरे के CH2F, ठीक है, CHCO माइनस है। ਜੇ ਉਰੇ ਆਪਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਕਿਹੜਾ ਕਾਰਬਨ ਆਇਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟੇਬਲ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਪਾਵਰ ਕਿਸ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਫਲੋਰੀਨ ਦੀ, ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ, ਡਿਸਟੈਂਸ ਸਭ ਤੋਂ ਕਲੋਜ਼ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, CO ਨੈਗੇਟਿਵ ਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ, Cl ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟੇਬਲ ਕਿਹੜਾ ਹੋਏਗਾ, ਪਹਿਲਾ ਕੇਸ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਆਪਾਂ ਨੇ ਐਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਪਾਵਰ ਕਿਸ ਦੀ ਹੈ, ਫਲੋਰੀਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਵਰਫੁਲ ਹੈ ਬਟ ਦੂਰ ਹੈ, ਬਟ ਕਲੋਰੀਨ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਨੇੜੇ ਹੈਗਾ, ਘੱਟ ਪਾਵਰਫੁਲ ਹੈ ਬਟ ਨੇੜੇ ਹੈ। ਤਾਂ DNP ਰੂਲ ਇਸ ਸੀਕੁਐਂਸ ਲਗਾਓ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਸਟੈਂਸ, ਫਿਰ ਨੰਬਰ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਪਾਵਰ ਚੈੱਕ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ CH3 CH, सॉरी CL Cl CO माइनस, ठीक है, सैकेंड केस CH3 CHF CO माइनस। ਹੁਣ ਇਸ ਕੇਸ 'ਚ ਦੇਖੋ ਫਲੋਰੀਨ ਵੀ ਨੰਬਰਿੰਗ ਤਾਂ ਸੇਮ ਹੈਗੀ, ਦੋਵੇਂ ਸੇਮ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਨੇ, ਬਟ ਉਰੇ ਨੰਬਰ ਕੀ ਨੇ, ਦੋ ਨੇਗੇ ਫਲੋਰੀਨ, ਉਰੇ ਫਲੋਰੀਨ ਇੱਕ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਨੰਬਰ, ਮਤਲਬ ਨੰਬਰ ਵਾਲਾ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਜਿੱਤ ਜਾਏਗਾ। आई होप ये भी ਤੁਹਾਨੂੰ क्लियर हो गया होगा DNP रूल, ठीक है। मोस्ट एसिडिक, ठीक है, एसिडिक स्ट्रेंथ का की मतलब ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ H पॉजिटिव देना, H पॉजिटिव जो ਦਊਗਾ ਤਾਂ ਰਿੰਗ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ ਆ ਜਾਊਗਾ, मतलब पहले केस 'ਚ रिंग इस तरह ਦੀ ਬਣ ਜਾਏਗੀ, दूसरे केस 'ਚ ਬਣ ਜਾਏਗੀ ਰਿੰਗ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ ਆ ਜਾਏਗਾ, ठीक है, थर्ड केस 'ਚ ਬਣ ਜਾਏਗੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ, ਤੇ फोर्थ केस 'ਚ ਕੀ ਬਣ ਜਾਏਗੀ, ਰਿੰਗ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ, ठीक है। ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਿੱਧਾ ਕਾਰਬਨ, ठीक है, डबल बॉन्ड ਤੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਹਾਈਲੀ ਅਨਸਟੇਬਲ ਹੁੰਦੇ, ਇਹ ਦੋ ਹੀ ਕੇਸ ਤੱਕ ਗਏ, ठीक है। ये वाला कंपाउंड, ठीक है, 2 पाई इलेक्ट्रॉन, ठीक है, नेगेटिव करके 2 पाई इलेक्ट्रॉन मतलब 4 पाई इलेक्ट्रॉन, ठीक है, एक ही हो जाएगा अपने को एंटी एरोमेटिक हो जाएगा, एक ही हो जाएगा एंटी एरोमेटिक हो जाएगा, तो यूरे की हो जाएगा 2 4 6, ठीक है, एक ही हो जाएगा 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम, मतलब एक ही हो जाएगा एरोमेटिक हो जाएगा, एक ही हो जाएगा एरोमेटिक हो जाएगा। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਕੰਪਾਊਂਡ एरोमेटिक हो रहे हैं वो ਕੀ ਹੋਊਗਾ, हाईली स्टेबल हो जाएगा, मतलब इजीली H पॉजिटिव देगा, मोस्ट इजीली H पॉजिटिव ਕਿਹੜਾ देगा, ऑप्शन नंबर 3, क्योंकि वो ਕੀ बन रहेगा, मोस्ट स्टेबल बन रहेगा। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की गल करिए, करैक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, ठीक है। पहला क्वेश्चन है अपने को CH3, ठीक है, CH पॉजिटिव CH3, ठीक है, सेकंड हैगा CH3 C पॉजिटिव, उरे H है तो उरे C2H5 है, तो इस केस अल्फा हाइड्रोजन कितने बन गए, ठीक है, ठीक है 5, इस केस कितने बन गए 6, तो मतलब ए वाला ज़्यादा स्टेबल हो गया, ठीक है, यही क्वेश्चन के अंदर मैंशन है, ठीक है, ये भी आ जाएगा करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। बाकी ऑप्शन तुम खुद चेक करनी है आपके एंड पे, ठीक है। ये वाला तो इजी क्वेश्चन है, ठीक है, नंबरिंग कर लो 1 2 3 4 5, ठीक है, 2,4 ਤੇ ਕੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, नहीं कुछ गड़बड़ कर रहे हैं शायद मैं, ठीक है, इसमें इस तरह मत देखो, ठीक है, इसमें खोल के लिखो थोड़ा जा, CH3 CH CH2 CH3, ठीक है, CH2 CH CH2 CH3 CH3, ठीक है, इस तरह आप लिखिए था। लॉन्गेस्ट कार्बन जेड की बन जाएगी 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है ना, तो मतलब 3,5 ਤੇ ਕੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮਿਥਾइल ग्रुप अटैच है, 3,5 मिथाइल, ठीक है, 3,5 डाई मिथाइल, ठीक है, दो मिथाइल ने, ठीक है, मैक्सिमम कार्बन एटम भी 7 ने, 7 लेके यूज करेंगे आप हेप्टेन, ठीक है, 3,5 डाई मिथाइल हेप्टेन, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी की हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेगा हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन नंबर 1 कार्बन नंबर 2 कार्बन नंबर 3। ਹੁਣ देखो उरे अपने को कितने सिंगल बॉन्ड्स ने, ठीक है, सिंगल बॉन्ड्स कैलकुलेट करो 1 2 3, ठीक है, सिंगल बॉन्ड नहीं सॉरी सिग्मा बॉन्ड्स, ठीक है ना, तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन की हो जाएगी sp2, ठीक है, उरे सिग्मा बॉन्ड कितने, ठीक है, C2 दे एक ए वाला एक ए वाला, तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन की हो जाएगी sp, ठीक है, इसकी कितनी हो जाएगी sp2 अगेन, ठीक है, इस तरह सिस्टम C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C, ठीक है, उरे हाइड्रोजन उरे हाइड्रोजन उरे हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ठीक है, इस तरह सिस्टम आप अलीन सिस्टम बोलते हैं, ठीक है, एलीन सिस्टम बोलते हैं, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर की बन जाएगा sp2 sp sp2, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। नेक्स्ट मोस्ट एसिडिक, ठीक है, इस तरह क्वेश्चन कर चुके हैं, आप बहुत प्रैक्टिस कर ली, ठीक है, उरे नेगेटिव बनया उरे नेगेटिव बनया उरे नेगेटिव बनया उरे नेगेटिव बनया, ठीक है, मोस्ट स्टेबल केड़ा हैगा ए वाला हैगा, ठीक है, क्योंकि ये एरोमेटिक बन रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा इसका, ठीक है। कार्बोकटाइन की स्टेबिलिटी, ठीक है, पहला की CH3 पॉजिटिव, सैकेंड किया CH2 पॉजिटिव, ठीक है, नाल उसने किया OCH3, ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਲੋਨ ਪੇਅਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ठीक है, लोन पेयर की करेगा बैक डोनेशन के थ्रू, लोन पेयर की करेगा बैक डोनेशन के थ्रू, मतलब रेजोनेंस के थ्रू या बैक डोनेशन के थ्रू की करेगा
ਕਾਰਬੋਕਟਾਈਨ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਦੇਗਾ, ਸਟੇਬਲ ਕਰ ਦੇਗਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਦੇ ਕੇ। ਤਾਂ ਬੀ ਦਾ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਹਾਈਲੀ ਸਟੇਬਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਕੇਸ 'ਚ ਅਲਫਾ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਕਿੰਨੇ ਨੇ, 3 ਨੇ, ਇਸ ਕੇਸ 'ਚ ਅਲਫਾ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਕਿੰਨਾ 0 ਹੈ। ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆ ਜਾਏਗਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਆ ਜਾਏਗਾ ਏ। ठीक है, बी सी ए की आ जाएगा, इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। ठीक है, थर्ड थे मोस्ट अनस्टेबल स्पीशीज। ठीक है, पहले केस की अपने को sp3 हाइब्रिडेशन है, मतलब ये की हो गया नॉन एरोमेटिक कंपाउंड हो गया। बेंजीन ये की हो गया अपने को एरोमेटिक कंपाउंड हो गया। ठीक है, हुन इस केस देखो, ठीक है, हुन ऑक्सीजन की ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, इलेक्ट्रॉन हुन आपदे वाले खिंचेगा, तो कुछ इस तरह की सिचुएशन बनेगी अपने को, सॉरी, ठीक, कुछ इस तरह की सिचुएशन बनेगी। और की बन जाएगा ओ नेगेटिव, और की बन जाएगा पॉजिटिव। ठीक है, तो इस केस की बनेगा अपने को, इस केस भी आप शिफ्टिंग करवाइए। ठीक है, तो उरे भी की बन जाएगा ओ नेगेटिव। ठीक है, तो उरे की बन जाएगा पॉजिटिव बन जाएगा। हुन देखो ये पॉजिटिव चार्ज तो अपने पता है रेजोनेंस अंदर पार्टिसिपेट नहीं करता हुंदा, मतलब इलेक्ट्रॉन काउंट नहीं होंदा हुंदा हैगा। तो इट मीनस, ठीक है, उरे कितना इलेक्ट्रॉन काउंट आ रहेगा, ठीक है 4 पाई इलेक्ट्रॉन। ठीक है, उरे कितना रहेगा 6 पाई इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो मोस्ट अनस्टेबल केड़ा हो जाएगा, ठीक है, एक ही हो गया अपने को एंटी एरोमेटिक बन गया, तो ये वाला की हो गया अपने को एरोमेटिक बन गया। ठीक है, हुन मोस्ट अनस्टेबल केड़ा होएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, क्योंकि ये बन रहेगा एंटी एरोमेटिक बन रहेगा, मतलब जो चार्ज सैपरेशन करके, मतलब ऑक्सीजन से ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਤਾ, ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन्स ਨੂੰ मूव करवाता, चार्ज सैपरेशन करके ਜਿਹੜੇ ਕੰਪਾਊਂਡਸ ਐਰੋਮੈਟਿਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਕੁਐਸੀ ਐਰੋਮੈਟਿਕ ਕੰਪਾਊਂਡਸ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਆਪਾਂ, ਕੁਐਸੀ ਐਰੋਮੈਟਿਕ ਕੰਪਾਊਂਡਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕੰਪਾਊਂਡਸ ਐਰੋਮੈਟਿਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਡਿਊ ਟੂ ਦਾ ਚਾਰਜ ਸੈਪਰੇਸ਼ਨ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द नंबर ऑफ कॉन्जुगेटेड इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, हुन ਤੁਹਾਨੂੰ पता हैगा फुरान ਦਾ स्ट्रक्चर है, ठीक है ना, ए वाला पाई बॉन्ड एक, ठीक है, की करेगा लोन पेयर, की करेगा रेजोनेंस अंदर पार्टिसिपेट करेगा, तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम बन जाएगा। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन सी, ऑप्शन नंबर थर्ड की हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। हुन ਆਪਾਂ डिस्कस करते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस कर देंगे। ठीक है, ये ऑप्शन चेंज कर लो, उरे इथेन कर लो, उरे की कर लो इथेन कर लो। ठीक है, बोनस क्वेश्चन सीगा, बट इन्होंने थोड़ी टाइपिंग एरर हो गई, जिस करके क्वेश्चन बोनस चला गया सी, बट आप फिर भी डिस्कस करते हैं की कॉन्सैप्ट अपन लगाना सी। ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਥਾਈਨ ਦਿੱਤਾ, ਇਥਾਈਨ ਮਤਲਬ CH ट्रिपल बॉन्डेड CH, इथीन मतलब CH2 डबल बॉन्डेड CH2। ठीक है, तो इथेन मतलब CH3 CH। क्लीयर है सब ਨੂੰ। ਹੁਣ ਐਸਿਡਿਕ ਸਟ੍ਰੈਂਥ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ, H ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਦੇਣ ਦੀ ਟੈਂਡੈਂਸੀ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਚੋਂ H ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕੱਢਦਾ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਰੇ ਕੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ CH ट्रिपल बॉन्डेड C नेगेटिव, उरे की बन जाएगा CH2 डबल बॉन्डेड CH नेगेटिव, ਤੇ ਉਰੇ ਕੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ CH3 CH2 माइनस। ठीक है ना, ਇਹ ਸਪੀਸੀਜ਼ ਬਣ ਜਾਣਗੇ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟੇਬਲ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਰੂਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮੋਰ ठीक है, नेगेटिव चार्ज, ठीक है, लिखो नेगेटिव चार्ज इज मोर स्टेबल ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। मतलब जे आप गल करिए, एक अपने को ऑक्सीजन से नेगेटिव है, एक नाइट्रोजन से नेगेटिव है, ਜਿਹੜਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟੇਬਲ ਹੋਏਗਾ, ਮੋਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨੈਗੇਟਿਵ ਐਲੀਮੈਂਟ ਤੇ, मतलब ऑक्सीजन ਤੇ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟੇਬਲ ਹੋਏਗਾ। ਵੈਸੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਰੱਖਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਪੀਸੀਜ਼ ਤੇ ਚਾਰਜ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆ ਜਾਏ ਉਸ ਅਨਸਟੇਬਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਟ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨੈਗੇਟਿਵ ਹੈ ਉਸ ਤੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟੇਬਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਰੇ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡੇਸ਼ਨ ਹੈ sp, ਉਰੇ sp2 ਤੇ ਉਰੇ sp3। ठीक है, तो सब तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव केड़ी होगी sp दी, फिर sp2 दी, फिर sp3 दी, मतलब ए वाली की होगी स्टेबिलिटी ऑर्डर होगी। मतलब इथाइन हुंदे जेडे, इथाइन की हुंदे ने मोर अपने कोल एसिडिक, देन इथीन्स, देन इथेन्स। ठीक है ना, ये क्वेश्चन बढ़िया बनाया सी उन्होंने, बट उन्होंने गलती की करती, ठीक है, ऑप्शन च, ठीक है, इथाइन इथीन इथाइन दोबारा देता, ठीक है, टाइपिंग एरर हो गई नहीं किसी तो, इस करके क्वेश्चन बढ़िया सी। ठीक है, इसका आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है ना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ AgNO3 ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ, Br ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਾਈਏ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ AgBr ਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ, AgBr ਦੇ ਕੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, PPT ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਚ ਪੁੱਛ ਰਹੇਗਾ the compound that gives precipitate on warming with aqueous AgNO3। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੁਐਸਚਨ ਲੈਕਚਰਰ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਰੀਟੋਰੀਅਸ ਲੈਕਚਰਰ ਦਾ। ਹੁਣ ਕਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪ੍ਰੈਸਿਪਿਟੇਟ ਦੇਗਾ ਈਜ਼ੀਲੀ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੈਸਿਪਿਟੇਟ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ Br ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਪਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪ੍ਰੈਸਿਪਿਟੇਟ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ AgBr ਦੇ PPT ਬਣਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ, मतलब Br ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬਾਹਰ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। Br किस फॉर्म से बाहर जाएगा, Br नेगेटिव फॉर्म से, मतलब रिंग ते किस तरह चार्ज छेगा, पॉजिटिव चार्ज। मतलब पहले केस कुछ रिंग इस तरह की बन जाएगी पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, सेकंड केस इस तरह की बन जाएगी, ठीक है, उरे पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, थर्ड केस च रिंग इस तरह की बन जाएगी, उरे पॉजिटिव चार्ज, फोर्थ केस के अंदर, ठीक है, कुछ रिंग इस तरह की बन जाएगी, उरे पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, आफ्टर द रिमूवल ऑफ
बी आर माइनस, ठीक है। उन्हें पूछे कितनी जल्दी प्रेसिपिटेट देगा, मतलब जो इजिली एजीबीआर बनाएगा, एजीबीआर मतलब जो इजिली बी आर नेगेटिव लूज करेगा। उन्होंने तो मोस्ट स्टेबल केड़ा बन रहेगा, एक ही बन गया, ये तो अपने को हाईली अनस्टेबल नहीं, क्योंकि डबल बॉन्ड से पॉजिटिव चार्ज आ गया, और एक ही बन गया एंटी एरोमेटिक बन गया, ये वाला की बन गया एरोमेटिक बन गया। एरोमेटिक करके बी आर नेगेटिव इजिली दे देगा, तो सब तो फास्ट प्रेसिपिटेट किससे मिलेंगे अपन को, ए वाले कंपाउंड से मिल जाएंगे, ठीक है। तो ऑप्शन डी की हो जाएगा इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, अपने बेसिसिटी कंपेयर करनी है, ये भी तो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, ठीक है। बेसिसिटी की टेंडेंसी टू डोनेट लोन पेयर, पूरे में दिख रहेगा जो लोन पेयर है वो रेजोनेंस का पार्टिसिपेट कर रहेगा, ठीक है। कुछ इस तरह की सिचुएशन बन रही है कि H3CCO नेगेटिव, ठीक है, डबल बॉन्डेड NH2 पॉजिटिव, मतलब नाइट्रोजन का लोन पेयर गायब हो गया, ठीक है, ड्यू टू रेजोनेंस। ता फोर्थ वाला तो सब तो कट होएगा, मतलब फोर्थ वाला सब तो कट होएगा, सारे ऑप्शन की फोर्थ होता है, चलो रजिस्टर कट कर नहीं सकते, ठीक है। हम देखो इस केस से दो मिथाइल ग्रुप अटैच ने, नाइट्रोजन हाइड्रोजन दो मिथाइल ग्रुप अटैच ने, ताकि ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेशन देंगे, ठीक है जी। इस केस देखिए CH3 CH2 NH2, इस केस ठीक है एक साइड ही लगे हुए नेगे, मतलब जो 3 हैगा वो ज्यादा एसिडिक ज्यादा बेसिक होगा कंपेयर टू 2, ठीक है। ए वाला कंपाउंड देखो उरे नाइट्रोजन है, उरे भी रेजोनेंस हो रहेगा, ठीक है। नाइट्रोजन इस केस देखो NH NH2, ठीक है। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ रेजोनेंस होया नेगेटिव चार्ज, फिर नाइट्रोजन तीन लोन पेयर आ गया, लोन पेयर तो नाइट्रोजन इजीली डोनेट कर देगा, ठीक है। ਆਪਾਂ ਨੂੰ लॉस नहीं होया हैगा, ठीक है। एक नेगेटिव चार्ज गया तो दूजे उस चला गया, वो दूजे नाइट्रोजन से चला गया, मतलब NH2 नेगेटिव, ये तो होर ज्यादा बेसिक हो गया, मतलब इस केस से बेसिसिटी काफी ज्यादा हाई हो जाएगी, ठीक है। इस तरह के कंपाउंड ਨੂੰ ठीक है ਆਪਾਂ बोलते हैं ग्वानिडीन कंपाउंड्स, ग्वानिडीन कंपाउंड्स बोलते हैं इस तरह के कंपाउंड ਨੂੰ, और ग्वानिडीन की ਹੁੰਦੇ ਨੇ हाईली बेसिक ਹੁੰਦੇ ਨੇ नेचर ਦੇ, मतलब फर्स्ट वाला की सब तो ज्यादा बेसिक हो जाएगा, फर्स्ट देन थर्ड देन सेकंड देन फोर्थ, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी की हो जाएगा इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। हाईएस्ट डाइपोल मूवमेंट, ठीक है, डाइपोल मूवमेंट की होएगा, मतलब ਜਿਹੜਾ जिन्ना ज्यादा चार्ज होएगा, जिन्ना चार्ज को ज्यादा होएगा, ये देखो इस केस च जे मैं उरे करदा, ठीक है, चार्ज मतलब ऑक्सीजन ਤੇ नेगेटिव आ गया, उरे पॉजिटिव आ गया। ਹੁਣ नेगेटिव ਤੇ पॉजिटिव कदों ज्यादा होएगा, ਜਦੋਂ कंपाउंड स्टेबल बन रहा होगा, ये कंपाउंड की बन रहा है एरोमेटिक बन रहेगा, 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स ने, 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स ने तो एरोमेटिक बन रहेगा, तो हाईली स्टेबल बन गया, इस करके इस केस सब तो ज्यादा की होएगा डाइपोल मूवमेंट होएगा, ठीक है जी। इस केस च करदे आपां, इस केस च की हुंदा अपने कोल, ठीक है, उरे O नेगेटिव उरे पॉजिटिव, हाँ थोड़ी बहुत स्टेबिलिटी होंगी डबल बॉन्ड ना रेजोनेंस करके, बट उरे दा एरोमेटिक दी स्टेबिलिटी है, एरोमेटिक दी स्टेबिलिटी का हर कोई कंपाउंड पाना चाहता है, तो इस करके ऑप्शन नंबर ए की हो जाना सी, इसका करेक्ट हो जाना सी, ठीक है। हम देखो द स्ट्रॉन्ग बेस अमंग द फॉलोइंग इज, ये बेसिक स्ट्रेंथ का की मतलब होता है, ठीक है। मेरे क्वेश्चंस नहीं है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस ने, ठीक है, वेरी इजी क्वेश्चन है, ठीक है। ए वाला नाइट्रोजन लोन पेयर दा पार्टिसिपेट है, ये तो बेसिक नहीं है, ए वाला भी लोन पेयर दा पार्टिसिपेट है, ये भी बेसिक है, ठीक है। ए वाला नाइट्रोजन sp2 मतलब sp डबल बॉन्ड ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਵਾਲਾ ਫ੍ਰੀ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਕਰੇਗਾ ਈਜ਼ੀਲੀ ਆਪਦੇ ਲੋਨ ਪੇਅਰਸ ਨੂੰ ਡੋਨੇਟ ਕਰ ਦੇਗਾ, ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੇਸਿਕ ਕਿਹੜਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰबर बी, ठीक है। इस केस च पूछेगा हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन चेंजेस, ठीक है। और देखो CH3 C डबल बॉन्ड O NH2 है, ठीक है, चेंज किस हो रहा है CH3 C ट्रिपल बॉन्ड N, ठीक है ना। ਹੁਣ CH3 सेम हैगा दोहां च, अपने किहड़ी हाइब्रिडेशन लिखनी है ए वाले कार्बन दी, ਤਾਂ ਉਰੇ 1 2 3 सिग्मा बॉन्ड्स ने, ਤਾਂ ਉਰੇ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ sp2 ਹੋ ਗਿਆ, ਉਰੇ ਕਿੰਨੇ सिग्मा बॉन्ड्स ने 1, ਉਰੇ 1 सिग्मा 2 पाई ने, मतलब 2 सिग्मा बॉन्ड्स ने, ਤਾਂ ਉਰੇ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ हाइब्रिडेशन sp, ਤਾਂ मतलब sp2 ਤੋਂ किस च चेंज होगी sp ਦੇ ਅੰਦਰ चेंज होगी, ਤਾਂ ਕਿਹੜਾ करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, ठीक है, सब तो ज्यादा स्टेबल ए वाला हो जाएगा, ठीक है, फिर ए वाला फिर ए वाला फिर ए वाला, मतलब 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4, ठीक है। तो इजी क्वेश्चन से अपने काफी डिस्कस कर चुके हैं, तो ऑप्शन ए की हो जाएगा इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आइडेंटिफाई द बॉन्ड दैट अंडरगोस हिट्रोलिटिक क्लीवेज, हिट्रोलिटिक क्लीवेज का मतलब होता है, देखो जी ए ते बी ने दोहे सेम सेम एटम्स ने, जे अपन इन्हां ते रेडिएशन पाई दोहे बॉन्ड टूट जाएंगे, एक इलेक्ट्रॉन इसमें मिल जाएगा एक इलेक्ट्रॉन इसमें, ठीक है। ए ते रेडिकल जनरेट हो गया तो दूसरे ए ते रेडिकल जनरेट हो गया, इस तरह के क्लीवेज ਨੂੰ ਆਪਾਂ बोलते हैं होमोलिटिक क्लीवेज, होमोलिटिक क्लीवेज, ठीक है। हिट्रोलिटिक क्लीवेज की ਹੁੰਦਾ है सपोज ए ਤੇ बी ਹੈਗਾ, ਹੁਣ बी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ਹੈਗਾ, ਤਾਂ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किस वाल शिफ्ट हो जाएगी ए वाल शिफ्ट हो जाएगी, जिस करके ए ਤੇ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ ਪਾਰਸ਼ੀਅਲ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆ ਜਾਏਗਾ ਤੇ बी ਤੇ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ ਪਾਰਸ਼ੀਅਲ नेगेटिव आ जाएगा। ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ हिट्रोलिटिक क्लीवेज ਕਿਹੜਾ ਹੋਊਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨੈਗੇਟਿਵ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਕਸੀਜਨ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਿਹੜਾ ਹਾਈਡਰੋਜਨ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨੈਗੇਟਿਵ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਈਜ਼ੀਲੀ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਬੌਂਡ ब्रेक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा इसका, ठीक है। विनाइल ग्रुप, ठीक है, विनाइल ग्रुप की ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ
ਡਬਲ ਬੌਂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਗਰੁੱਪ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਬੋਲ ਦਾਂਗੇ ਵਿਨਾਇਲ ਗਰੁੱਪ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਪੋਜ਼ x ਕੋਈ ਗਰੁੱਪ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੋਲਾਂਗੇ ਵਿਨਾਇਲ ਗਰੁੱਪ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਬੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਕਰਨਾ, ਜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੈਂਜ਼ੀਨ ਰਿੰਗ ਹੈ, ਬੈਂਜ਼ੀਨ ਰਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗਰੁੱਪ ਲੱਗਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੋਲਾਂਗੇ ਅਰਾਇਲ ਗਰੁੱਪ। ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਬੋਲਾਂਗੇ ਅਰਾਇਲ ਗਰੁੱਪ। ਜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਡਬਲ ਬੌਂਡਡ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਾਰਬਨ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਡਬਲ ਬੌਂਡ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਸੀਗਾ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਕਾਰਬਨ ਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਗਰੁੱਪ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਪਾਊਂਡਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਬੋਲ ਦਿਆਂਗੇ ਅਲਾਈਲਿਕ ਗਰੁੱਪ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਬੋਲਾਂਗੇ ਅਲਾਈਲਿਕ ਗਰੁੱਪ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੈਂਜ਼ੀਨ ਰਿੰਗ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਕਾਰਬਨ ਆਇਆ ਵਿੱਚ ਤੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਗਰੁੱਪ ਅਟੈਚ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੋਲ ਦਿਆਂਗੇ ਬੈਂਜ਼ਾਈਲਿਕ ਗਰੁੱਪ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਬੋਲਾਂਗੇ ਬੈਂਜ਼ਾਈਲਿਕ ਗਰੁੱਪ ਬੋਲਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਇਹ ਵਾਲਾ ਕਿਹੜਾ ਗਰੁੱਪ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਅਲਾਈਲਿਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਵਾਲਾ ਕਿਹੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਅਲਾਈਲਿਕ, ਇਹ ਵਾਲਾ ਕਿਹੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਵਿਨਾਇਲਿਕ। ਤੇ ਪੇਪਰ 'ਚ ਵਿਨਾਇਲਿਕ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਬੀ ਕਰੈਕਟ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕੰਪਾਊਂਡਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਟਰਮ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵਿਸੀਨਲ ਕੰਪਾਊਂਡ, ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਟਰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੈਮੀਨਲ ਕੰਪਾਊਂਡ। ਤੇ ਵਿਸੀਨਲ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੇ ਦੋ ਐਡਜੈਸੈਂਟ ਕਾਰਬਨ ਤੇ ਸੇਮ ਗਰੁੱਪ ਲੱਗੇ ਹੋਣ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ClCl ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਵਿਸੀਨਲ ਡਾਈਹਲਾਈਡਸ। ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਦੋ ਐਡਜੈਸੈਂਟ ਕਾਰਬਨ ਤੇ ਕੀ ਲੱਗੇ ਨੇ ਦੋ ਗਰੁੱਪਸ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਹੀ ਕਾਰਬਨ ਦੇ ਦੋ ਗਰੁੱਪ ਲੱਗੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੋਲ ਦਿਆਂਗੇ ਜੈਮੀਨਲ। ਮਤਲਬ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੋਲਾਂਗੇ ਜੈਮੀਨਲ ਡਾਈਕਲੋਰਾਈਡ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਕਾਰਬਨ ਉਰੇ ਹੈਗਾ, ਇੱਕ ਕਾਰਬਨ ਉਰੇ ਹੈਗਾ, ਇੱਕ ਆਪਣੇ OH ਲਗਾਤਾ, ਇੱਕ OH ਉਰੇ ਲਗਾਤਾ, ਮਤਲਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਪਾਊਂਡ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਬੋਲਾਂਗੇ ਵਿਸੀਨਲ ਡਾਇਓਲਸ। ਮਤਲਬ ਐਡਜੈਸੈਂਟ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਕੀ ਲੱਗੇ ਨੇ ਦੋ OH ਗਰੁੱਪਸ ਲੱਗੇ ਨੇਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਰੇ ਲਗਾਈਏ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੀ ਕਾਰਬਨ ਤੇ ਆਪਾਂ ਦੋ OH ਗਰੁੱਪ ਲਗਾ ਦਈਏ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਬੋਲ ਦਿਆਂਗੇ ਜੈਮੀਨਲ ਡਾਇਓਲਸ। ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਬੋਲਾਂਗੇ ਜੈਮੀਨਲ ਡਾਇਓਲਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਪਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਹੁੰਦਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ WhatsApp ਤੇ ਪੁੱਛ ਲਓ। ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ YouTube ਤੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਟੈਸਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਸਸਤੀ ਟੈਸਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਹੈ ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਟੈਸਟ ਦਾ ਵੀਡੀਓ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਹਰ ਇੱਕ ਕੋਈ ਟੈਸਟ ਸੀਰੀਜ਼ 3000 ਦੇ ਰਹੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵਿਦਾਊਟ ਟੈਸਟ ਸੋਲੂਸ਼ਨ, ਬਟ ਟੈਸਟ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਸਿਰਫ 600 ਰੁਪੀਜ਼ 'ਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਟੈਸਟ ਦਾ ਡਿਟੇਲ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਕਨਸੈਪਚੁਅਲ ਕਲੈਰਿਟੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕੇ। ਤੇ ਕੀ ਫੀਚਰਸ ਨੇਗੇ, ਹਰ ਇੱਕ PYQs ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਆਪਾਂ ਟੈਸਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਨਕਲੂਡ ਕਰ ਦੇਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵੀਡੀਓ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਟੈਸਟ ਐਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕੰਡਕਟ ਕਰਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਟੈਸਟ ਦੀ ਬਾਅਦ ਚ PDF ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਿੰਟ ਆਊਟ ਕਰਕੇ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫੀਚਰਸ ਸਿਰਫ 600 ਰੁਪੀਜ਼ ਚ ਮਿਲਦੇ ਨੇਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਟੈਸਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਐਗਜ਼ਾਮ ਕੋਲ ਆ ਰਹੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨੰਬਰ ਹੈ ਕੰਟੈਕਟ 8437068169। ਠੀਕ ਹੈ, WhatsApp ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਾਲ ਨਾ ਕਰੋ ਤਾਂ ਬੈਟਰ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵਾਲਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਠੀਕ ਹੈ ਸੀਰੀਜ਼ ਕਲੀਅਰ ਹੋਇਆ ਹੋਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਕਨਸੈਪਟਸ ਪਤਾ ਚੱਲੇ ਹੋਣਗੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਫॉर ਵਾचिंग दिस वीडियो।